Hello students, in our last class we have discussed about the catalysis, which is under the chapter of the surface chemistry. So till now we have discussed mainly the two properties of the surface chemistry. The first one is the adsorption and the second one is the catalysis. So in my last class I have told that the enzymes are actually the protein molecules, and these enzymes are used as catalyst in the biological chemical reactions. I have told few characteristics of the enzyme catalysis, and now today I will start my class with the mechanism of the enzyme catalysis. There are a number of cavities present on the surface of colloidal particles of enzymes. These cavities are of characteristic shape and it contains active groups like NH2, COOH, SH, OH, etc. Means the amine group, carboxylic acid group, thiol group or alcoholic group, etc. These are actually the active centers on the surface of enzyme particles. Okay, तो हम लोग जो एंजाइम के बात कर रहे थे, एंजाइम के अंदर कभी कभी कुछ होल रहता है, ठीक है, मतलब उसके अंदर कभी कभी कुछ कैविटी रहता है और उस कैविटी में मेनली कुछ ग्रुप्स, कुछ ऑर्गेनिक ग्रुप्स रहता है लाइक एमीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, थायोल, अल्कोहलिक एटसेट्रा, एंड दीज आर एक्चुअली द एक्टिव सेंटर्स ऑन द सरफेस ऑफ द एंजाइम पार्टिकल्स. मतलब एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करता है, मेनली ये सब ग्रुप इफेक्टिव ग्रुप का काम करता है, इसके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छे से बनता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई हैव दैट एंजाइम, सो दैट इज आवर एंजाइम, that is actually the biological catalyst, and these are the cavities present in enzyme, and suppose that is our substrate or the reactant here, and when the enzyme and substrate they come together, then they will form the enzyme substrate complex, that is ES complex, means E for enzyme, substrate is for substrate, ठीक है, enzyme substrate complex, and after the reaction it forms products and the enzyme remains unaffected. मतलब कैटलिस्ट में जैसे होता है, कैटलिस्ट आफ्टर द रिएक्शन अनअफेक्टेड रहता है, यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट का रिएक्शन हुआ, ये एक बीच में एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया और उसके बाद एंजाइम इंटेक्ट हो गया, बट हम लोग जो हम लोग का डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो भी हम लोगों को मिल जाता है. तो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम कैटालिसिस, और इसको हम लोग लॉक एंड की कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं. मतलब सपोज ये जो एंजाइम है, सपोज दैट इज अवर की एंड द सबस्ट्रेट का जैसे स्ट्रक्चर है, सपोज दैट इज अवर लॉक. तो ये लॉक एंड की में जैसे पर्टिकुलर कोई एक की रहता है, पर्टिकुलर कोई एक लॉक के लिए, यहाँ पर भी पर्टिकुलर कोई एंजाइम रहता है पर्टिकुलर कोई एक सबस्ट्रेट के लिए, तभी रिएक्शन संभव है, अदरवाइज रिएक्शन संभव नहीं है. ठीक है, तो ये हम लोग ऑलरेडी बताए थे कैरेक्टरिस्टिक्स में कि एंजाइमेटिक जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होता है, दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक इन नेचर. तो दैट इज़ द मेन रीज़न कि इसका लॉक एंड की कॉन्सेप्ट जो है, इससे हम लोग इसको वेरी इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं. Thus the enzyme catalyzed reactions may be considered to proceed in two steps. The step 1, that is the binding of enzyme to substrate to form an activated complex, that is our ES complex, E plus S, that is ES, that is the intermediate one. And in the step 2, the decomposition of the activated complex to form the product, that is ES. इससे क्या फॉर्म हुआ, E plus product. Okay. So that is the main mechanistic steps of the enzyme
catalysis. Now I will discuss about few important catalysts which are used in industrial purpose. Okay. For example, the first one, that is the Haber process for the manufacture of ammonia. Finely divided iron is required, which is actually act as catalyst here. Molybdenum as promoter, and the condition of the reaction, that is 200 bar pressure and 723 to 773 Kelvin temperature. Nowadays, a mixture of iron oxide, potassium oxide and alumina is used in Haber process when we are synthesizing ammonia for industrial purpose. Okay. Next, that is the Oswald process. That is also a very well known process. Everybody we know for the manufacture of the nitric acid, the Oswald process. And in this Oswald process, mainly the platinized asbestos is used as catalyst, where the temperature is 573 Kelvin. Next example is the contact process for the manufacture of the sulfuric acid. That is also very well known. For synthesizing the sulfuric acid, we are mainly follow this process which is known as the contact process. Here platinized asbestos or V2O5, that is the vanadium pentoxide, is used as a catalyst at temperature 673 to 723 Kelvin. Okay, so this is all about our catalysis portion, and now today mainly I will discuss another properties of surface chemistry, that is the colloids. Okay, so I am just going to that question. So that is our colloids. So first of all, we have to know what do you mean by colloids. A colloid is a heterogeneous system in which one substance is dispersed, means in the dispersed phase, as very fine particles in another substance called dispersion medium. Colloidal particles are larger than simple molecules but small enough to remain suspended. Their range of diameters is between 1 and 1000 nanometer. Okay, तो colloid जो हम लोग बात कर रहे थे, colloid एक्चुअली एक सोल्यूशन है. हम लोग इसको एग्जैक्टली सोल्यूशन नहीं बोल सकते, बट ये सोल्यूशन तरह ही है. ठीक है, मतलब क्या है, जैसे हम लोग सॉल्यूशन में जानते हैं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट रहता है, कॉलॉइड में भी क्या रहता है, एड्सॉर्ब, मतलब डिस्पर्स्ड मीडियम एंड डिस्पर्स फेज. मतलब जैसे हम लोग एड्सॉर्प्शन में देखे थे एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट रहता है, कॉलॉइड्स में भी डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स फेज रहता है. तो सॉल्यूशन में जिसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे, कॉलॉइड्स में उसको ही हम लोग डिस्पर्स्ड मीडियम बोलेंगे, और जो सॉल्यूट है, मतलब सॉल्यूशन में जिसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, मतलब जिसका अमाउंट कम रहता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, जिसका अमाउंट ज़्यादा रहता है इसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं. कॉलॉइड्स में भी जिसका अमाउंट ज़्यादा रहता है इसको डिस्पर्स्ड मीडियम बोलते हैं, और जिसका अमाउंट कम रहता है इसको हम लोग डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं. ठीक है, तो इसीलिए इसका डेफिनेशन, जैसे हम लोग सॉल्यूशन का डेफिनेशन देते हैं, कॉलॉइड्स का भी डेफिनेशन हम लोग ऐसे दे सकते हैं कि एक कॉलॉइड इज अ हेटेरोजेनियस सिस्टम, दैट इज नॉट होमोजेनियस सिस्टम. सॉल्यूशन में हम लोग होमोजेनियस सिस्टम बोलते हैं, बट कॉलॉइड इज अ हेटेरोजेनियस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड, मतलब जिसको हम लोग डिस्पर्स फेज बोल रहे हैं, जो सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूट है, जिसका अमाउंट कम रहता है, तो उसको ही हम लोग यहाँ पर डिस्पर्स फेज बोल रहे हैं. ठीक है, तो वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड as very fine particles in another substance called the dispersion medium. So dispersion medium is the main thing in the colloids, means the volume of the dispersion medium is maximum here, and the dispersed phase that should be remain in very small amount in the colloidal solution. Okay, so the colloidal particles are larger than simple molecule but small enough to remain suspended. Okay, तो इसका जो डायमीटर का रेंज होता है कॉलॉइडल पार्टिकल का,
इसका होता है 1 से 1000 नैनोमीटर के अंदर। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो 10⁻⁹ टू 10⁻⁻6 मीटर के अंदर इसका डायमीटर होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉलॉइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलॉइड में जो डिस्पर्स फेज होगा, ठीक है, उसका डायमीटर का रेंज होगा 1 से 1000 नैनोमीटर के अंदर, ठीक। इसको हम लोग को बहुत अच्छा से याद करना है, और ये भी हम लोग को याद रखना है कि व्हाट इज द डिस्पर्स फेज एंड व्हाट इज द डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम इज इन large amount, but disperse phase should be in small amount. Okay. Next, we are going to the classification of the colloids. How can we classify the colloids? First one, there is the physical state of disperse phase and dispersion medium. तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम का फिजिकल स्टेट कैसा है, मतलब सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग कॉलॉइड को एक क्लासिफाई कर सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये भी हो सकता है कि नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम, मतलब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के अंदर कैसा इंटरेक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो सकता है, कोवैलेंट इंटरेक्शन हो सकता है, वैन डर वाल्स बॉन्ड रह सकता है, मतलब कैसे उसके बीच इंटरेक्शन हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग कॉलॉइड्स को फिर डिवाइड कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इट इज द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज तो हम लोग बताए हैं कि 1 से 1000 नैनोमीटर के अंदर उसका डायमीटर रहेगा। तो उसके ऊपर डिपेंड करके जब 1 नैनोमीटर होगा उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे कॉलॉइड्स को, जब 1 से ज़्यादा होगा क्या बोलेंगे, जब 1000 नैनोमीटर या उससे कम होगा। मतलब ये रेंज जो हम लोग बोल रहे हैं, इस रेंज के ऊपर डिपेंड करके भी हम लोग कॉलॉइड्स को फिर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों पोर्शन के बारे में हम लोग ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ dispersed phase and the dispersion medium. Okay. First इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो first of all, suppose the dispersed phase that is solid and the dispersion medium suppose that is solid, liquid and gas, ठीक है, अलग। तो फर्स्ट जब solid होगा उसको हम लोग बोलते हैं solid sol, ठीक है। कॉलॉइड का नाम क्या है, solid sol बोलेंगे। एग्जाम्पल some colored glasses and gemstones, ओके। इसमें एक्चुअली सॉलिड रहेगा, मतलब डिस्पर्स फेज भी सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड, इसलिए इसको सॉलिड सॉल बोल सकते हैं। देन सॉलिड लिक्विड, ये भी हो सकता है। डिस्पर्शन फेज सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम दैट इज लिक्विड, ये भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर लिक्विड का अमाउंट ज़्यादा होगा, सॉलिड का अमाउंट कम होगा। इसको भी हम लोग सॉल बोलते हैं, इसका जस्ट हम लोग सॉल बोलते हैं। एग्जाम्पल इज द पेंट्स या सेल फ्लूइड्स। नेक्स्ट सॉलिड गैस, डिस्पर्स्ड फेज जो है, मतलब जिसका अमाउंट कम है, सपोज दैट इज सॉलिड, एंड डिस्पर्शन मीडियम दैट इज गैस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एरोसॉल बोलते हैं, दैट इज नोन एज एरोसॉल। फॉर एग्जाम्पल स्मोक एंड डस्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये सॉलिड से हो गया, डिस्पर्स फेज जब सॉलिड है, और डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस, ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉलिड सॉल, सॉल, एरोसॉल, ये हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। उसका एग्जांपल मैं दिया हूँ। नेक्स्ट क्या करेंगे, डिस्पर्स फेज लिक्विड में ले रहा हूँ, और डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस में ले रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्पर्स फेज जब लिक्विड होगा, डिस्पर्शन मीडियम जब सॉलिड होगा, मतलब सॉलिड का अमाउंट अभी ज़्यादा हो गया है, लिक्विड का अमाउंट कम है, उसको हम लोग जेल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल चीज़, बटर, जेलीज। नेक्स्ट द डिस्पर्स फेज इज लिक्विड, डिस्पर्शन मीडियम इज लिक्विड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्शन बोलते हैं, दैट इज नोन एज द लिक्विड इमल्शन। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, हेयर क्रीम एटसेट्रा। Next, the dispersed phase is liquid, but the dispersion medium is gas. इसको भी हम लोग aerosol ही बोलते हैं। For example, fog, mist, cloud,
नेक्स्ट क्या है, द डिस्पर्स्ड फेज गैस है और डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड और लिक्विड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब डिस्पर्स फेज गैस है, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में सॉलिड है बट कम अमाउंट में गैस है, उसको हम लोग सॉलिड सॉल्व बोलते हैं। मतलब जब सॉलिड सॉलिड होता है उसको भी सॉलिड सॉल्व बोलता है, जब गैस सॉलिड होता है उसको भी सॉलिड सॉल्व बोलता है। फॉर एग्जाम्पल प्यूम स्टोन, फोम राउटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट, जब डिस्पर्स फेज गैस है, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहले जान लो, इसको हम लोग फोम बोलते हैं। फोम तो हम लोग जानते ही हैं, तो इसका एग्जाम्पल है फ्रॉथ, व्हिप्ड क्रीम, सोप, लेदर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो हम लोग डिस्कस किए हैं, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है सॉल्ट, जेल एंड इमल्शन। ये कभी कभी क्वेश्चन भी आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्ट, जेल एंड इमल्शन एंड गिव द एग्जांपल्स ऑफ दैट। ठीक है, तो सॉल मेनली हम लोग किसको बोलते हैं, सॉल हम लोग बोलते हैं जब सॉलिड्स इन लिक्विड्स रहता है, इसको हम लोग सॉल्व बोलते हैं। जेल्स इसको बोलते हैं जब लिक्विड्स इन सॉलिड्स रहता है, हम लोग ऑलरेडी बताए हैं। और इमल्शन का मतलब जब लिक्विड लिक्विड रहता है उसको हम लोग इमल्शन होता है। तो ये डेफिनेशन ठीक से लिखना है। सॉल्ट्स का मतलब जब सॉलिड्स इन लिक्विड्स में रहेगा, इसको हम लोग सॉल्ट्स बोलेंगे। देखो हम लोग यहाँ पर दिखाए हैं, तो दैट इज एक्चुअली द सॉल्ट। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है पेंट्स एंड सेल फ्लूइड्स, दैट इज एक्चुअली द सॉल्ट। जेल क्या है, जेल है जब लिक्विड्स इन सॉलिड्स में रहेगा, इसको हम लोग मेनली जेल बोलते हैं, तो दैट इज अवर जेल। एग्जाम्पल इज चीज, बटर, जेलीज। नेक्स्ट इमल्शन, इमल्शन में ऑलवेज लिक्विड लिक्विड होता है, तो इसलिए लिक्विड्स एंड लिक्विड, सो मिल्क, हेयर क्रीम, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन। तो सॉल्ट, जेल, इमल्शन, अगर तुमसे कोई पूछे तो तुमको लिखना है सॉल्ट का मतलब सॉलिड्स इन लिक्विड्स, मतलब सॉल्ट इज द डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम इज द लिक्विड। जेल्स क्या है, जेल्स का मतलब है लिक्विड इज द डिस्पर्स फेस एंड सॉलिड्स इज द dispersion medium, और emulsion मतलब disperse phase, disperse medium, both are liquids. Further, it may be mentioned that if the dispersion medium is water, the sol is called aqua sol or hydrosol. Obviously हम लोग aqua का मतलब water जानते हैं, हाइड्रोलिसिस जिसको बोलते हैं, तो इसीलिए उसको हम aqua sol और hydrosol बोलते हैं। जब सॉल का डिस्पर्शन मीडियम वाटर में हो जाएगा तो उसको हम लोग बोल सकते हैं। ओके, एंड इफ द डिस्पर्शन मीडियम इज एल्कोहल, इट इज कॉल्ड एल्कोसॉल एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हम लोग का फर्स्ट एक क्लासिफिकेशन हो गया, विच इज बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये करके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉलॉइड्स का क्लासिफिकेशन, which is based on nature of interaction between the disperse phase and dispersion medium. ये भी हम लोग बता रहे थे कि nature of interaction between the disperse phase and dispersion medium, ये इसको देखते हुए हम लोग colloids को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंड करके मेनली colloids को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द लायोफिलिक कॉलॉइड्स एंड सेकंड वन इज नोन एज द लायोफोबिक कॉलॉइड्स। तो फर्स्ट लायोफिलिक, फिलिक का मतलब फिलिया, फिलिया मतलब लव हम लोग जानते हैं, और फोबिया का मतलब है हेटिंग, हेट करना है। ठीक, तो लायोफिलिक का मतलब ये लिक्विड लविंग। ठीक है, लायोफिलिक का मतलब liquid loving. So the colloidal salts directly formed by mixing substances like gum, gelatin, starch, rubber, etc. with a suitable liquid, which is actually the dispersion medium, are called the lyophilic salts. Okay? An important characteristic of these salts is that if the dispersion medium is separated from the dispersed phase, maybe by evaporation, the salt can be reconstituted by simply remixing with the dispersion medium. That is why these salts are also called reversible salts. Furthermore, these salts are quite stable and cannot be easily coagulated. Okay?
क्योंकि यहाँ पर लायोफिलिक सॉल्ट्स का मतलब ये यहाँ पर जो डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्शन मीडियम है, इसके अंदर लव है। लव मतलब इसके अंदर जो इंटरेक्शन है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर एक को मैं इवेपोरेट करके निकाल दिया डिस्पर्स फेज या डिस्पर्शन मीडियम, अगर एक को मैं इवेपोरेट करके निकाल दिया और उसके बाद फिर अगर मैं उसको उसमें ऐड कर देता हूँ, तब मैं देखूंगा कि फिर से कॉलॉइड बन गया। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग रिवर्सिबल सॉल्ट्स भी बोलते हैं, और ये ऑब्वियसली वेरी वेरी स्टेबल एंड कैन नॉट बी इजीली कोआगुलेटेड। ये जो कोआगुलेशन पोर्शन है, ये पोर्शन मैं बाद में डिस्कस करूँगा। ठीक, नेक्स्ट इज द लायोफोबिक कॉलॉइड्स। ये एक्चुअली क्या है, तो मैं पहले ही बताया कि फोबिया का मतलब है हिटिंग, तो ऑब्वियसली लायोफोबिक का मतलब है लिक्विड हिटिंग। So the substance is like metals, their sulfides, etc. when simply mixed with the dispersion medium do not form the colloidal salt. The colloidal salts can be prepared only by special methods. Such salts are called the lyophobic salts. मतलब ये इतना आसानी से ये फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, so these salts are readily precipitated or coagulated on the addition of small amount of electrolytes by heating or by shaking and hence are not stable. ठीक है, तो ये जो लायोफोबिक कॉलॉइड्स है ये बहुत इजीली प्रेसिपिटेटेड आउट हो जाता है या कोआगुलेटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड हीटिंग है। अगर मैं ठीक से इसको प्रिपरेशन प्रोसेस से नहीं किया तो ये सही से प्रिपेयर नहीं हो सकता है। ये अगर उसमें हम लोग कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए, सपोज एल्यूमिनियम क्लोराइड, FeCl, मतलब कोई भी सिंपल इलेक्ट्रोलाइट अगर मैं उसमें डाल दिया या उसको हीट कर दिया, शेक कर दिए, तो हम लोग देख सकते हैं कि वो उतना आसानी से कॉलॉइड्स फॉर्म में नहीं रहेगा, क्योंकि ये वेरी वेरी अनस्टेबल है। ठीक है, so further once precipitated they do not give back the colloidal salt by simple addition of the dispersion medium, hence these salts are also called irreversible salts. रिवर्सिबल सॉल्ट में हम लोग जैसे देख रहे थे कि डिस्पर्शन मीडियम को अगर हम लोग सेपरेट कर दिए फ्रॉम डिस्पर्स फेज बाय यूजिंग इवेपोरेशन, तो उसमें अगर मैं फिर से रिमिक्सिंग कर दिया तो कॉलॉइडल सॉल्ट बन रहा था। बट यहाँ पर अगर मैं इवेपोरेशन से कोई एक को निकाल दिया और फिर बाद में मैं डिस्पर्शन मीडियम को उसमें डाल रहा हूँ, तब मैं देखूंगा उतना आसानी से ये फॉर्म नहीं करेगा, इसलिए इसको हम लोग इरिवर्सिबल सॉल्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो लायोफोबिक सॉल्ट्स नीड स्टेबिलाइजिंग एजेंट्स फॉर देयर प्रिजर्वेशन। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए हम लोगों को इसके अंदर कुछ स्टेबिलाइजिंग एजेंट ऐड करना पड़ता है। ठीक है, ये अगर स्टेबिलाइजिंग एजेंट हम लोग इसमें ऐड नहीं करेंगे तो लायोफोबिक कॉलॉइड्स या लायोफोबिक सॉल्ट्स स्टेबल नहीं हो। ठीक है, तो इसके लिए स्टेबिलाइजिंग एजेंट का बहुत जरूरी है, बट जो लायोफिलिक कॉलॉइड्स के लिए जरूरत नहीं था। तो ये हम लोग का पार्ट 2 हो गया। पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस किए, इसको हम लोग कॉलॉइड्स को हम लोग क्लासिफाइड किए based on the nature of interaction between disperse phase and dispersion medium. And the last one, that is the classification based on the type of particles of the dispersed phase. ये मैं थर्ड पॉइंट में जो मैं डिस्कस करूँगा, that is the classification based on the type of particles of the dispersed phase. तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है। फर्स्ट वन इज द मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। ओके, फर्स्ट वन इज द मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। तो इसमें एक्चुअली क्या है, देखो, ऑन डिसोल्यूशन ए लार्ज नंबर ऑफ एटॉम्स, ऑन डिसोल्यूशन ए लार्ज नंबर ऑफ एटॉम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स of a substance aggregate together to form species having size in the colloidal range. That is, the diameter is lesser than 1 nanometer. The species thus formed are called the multi-molecular colloids. For example, a gold salt may contain particles of various sizes having many atoms. Sulfur salt consists of particles containing 1,000 or more of S8 sulfur molecules. तो इसीलिए इसको हम लोग मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स बोल रहे हैं, क्योंकि जब गोल्ड सॉल्ट हम लोग बनाते हैं तो गोल्ड सॉल्ट में वेरियस साइज के मेनी एटम्स रहते हैं। द सल्फर सॉल्ट में भी 1000 ऑफ पार्टिकल्स रहता है ऑफ S8 सल्फर मॉलिक्यूल्स।
इसलिए इसको हम लोग मल्टी मॉलिकुलर कॉलॉइड्स बोल रहे हैं। बट जब वो कॉलॉइडल फॉर्म ले लिया तो उसका डायमीटर हो जाता है लेस देन नैनोमीटर, इसलिए इसको हम लोग मल्टी मॉलिकुलर कॉलॉइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट, द मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स, दैट इज नंबर 2 in the portion of the type of particles of the dispersed phase. Okay, that is the number 2, macromolecular colloids. Macromolecules in suitable solvents form solutions in which the size of the macromolecules may be in the colloidal range. Such systems are called macromolecular colloids. These colloids are quite stable and resemble true solutions in many respects. Examples of naturally occurring macromolecules are starch, cellulose, proteins, and enzymes, and those of man-made macromolecules are polythene, nylon, polystyrene, synthetic rubber, etc. मतलब क्या है? सपोज मैं प्रोटीन का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। प्रोटीन जो है, प्रोटीन में हम लोग जानते हैं प्रोटीन कैसे फॉर्म होता है। प्रोटीन हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा अमाइनो एसिड मिला के एक प्रोटीन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक जस्ट सिंपल प्रोटीन का एग्जांपल देता हूँ, दैट इज़ द ह्यूमन सीरम एल्बुमिन, जो हम लोग का ह्यूमन बॉडी में रहता है। ह्यूमन सीरम एल्बुमिन, इसमें 585 अमाइनो एसिड्स रहता है। तो तुम लोग को समझ में आ ही रहा होगा कि ये अगर 585 अमाइनो एसिड एक साथ रहेगा तो उसका डायमीटर कितना लार्ज हो सकता है। बट इसको अगर हम लोग सुइटेबल सॉल्वेंट में डिजोल्व कर दिए, फॉर एग्जांपल वाटर या बफर में अगर हम लोग डिजोल्व कर दिए, तो इसका जो रेंज हो जाता है, जो कॉलॉइडल पार्टिकल्स का रेंज हो जाता है, जो 1 से 1000 नैनोमीटर के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कॉलॉइड्स बोलते हैं, इसको हम लोग मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स बोलते हैं। ये प्रोटीन जो मैं बोल रहा था HSA या ह्यूमन सीरम एल्बुमिन, इसमें हम लोग देख सकते हैं, या मैन-मेड मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक पॉलीथीन, नाइलॉन, पॉलीस्टाइरीन, सिंथेटिक रबर, ये सब भी मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स का एग्जांपल है। ठीक, ओके। इसके बाद जो है नंबर 3, दैट इज एक्चुअली नोन एज द एसोसिएटेड कॉलॉइड्स और माइसेल्स। थर्ड में क्या है? एसोसिएटेड कॉलॉइड्स और माइसेल्स। तो टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज जो मैं बोल रहा हूँ, इसमें मेनली 3 क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन इज द मल्टी मॉलिकुलर कॉलॉइड्स, नेक्स्ट वन इज द मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स, एंड द थर्ड वन दैट इज द एसोसिएटेड कॉलॉइड्स और माइसेल्स। तो मैं ये माइसेल्स, ये एसोसिएटेड कॉलॉइड्स जो है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, क्योंकि इसमें और थोड़ा डिटेल्स हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। ठीक, तो आज के लिए मैं क्लास यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आज मैं मेनली जो बताया दैट इज़ कॉलॉइड्स क्या है, कॉलॉइड्स का डेफिनेशन बताए हैं, इसमें डिस्पर्स फेज, डिस्पर्शन मीडियम रहता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स किए हैं। फर्स्ट किए हैं द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम में, जिसके अंदर सॉल, जेल और एरोसॉल, इमल्शन, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग किया है कि नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज, डिस्पर्शन मीडियम, जैसे लायोफिलिक कॉलॉइड्स क्या है, लायोफोबिक कॉलॉइड्स क्या है, कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है, किसको हम लोग रिवर्सिबल सॉल्व बोलेंगे, किसको हम लोग इरिवर्सिबल सॉल्व बोलेंगे। नेक्स्ट ये है दैट इज द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज, दैट इज मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड। इसके अंदर मैं दो के बारे में अच्छे से डिस्कस किया और नेक्स्ट पोर्शन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू।